Good morning, students. So, beta, today we are going to attempt the next problem from year 2016. Okay, and this question number 14, children. When you will go through the problem, then what we find that again the problem is based upon the matrix. And children, if it is not a very simple one, a little bit tricky problem is this. And when you will go through the problem, children, what do we find that we have to shift the rows. Okay, in this problem, shifting is done. Okay, so थोड़ा सा ट्रिकी है और देखते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो देखिए क्लास का नेम क्या दिया गया है, शिफ्ट हैविंग 3 डेटा मेंबर्स। मैट है, एम और एन है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम के लिए सेम एज द प्रीवियस प्रॉब्लम। देन द शिफ्ट द constructor of the class is given to initialize the m and n. Then void input method is there to input the elements of the array, and then void cycle shift p. Okay, it is the main function which enables the matrix of the object p to shift each row upward in a cyclic manner and store the resultant matrix in the current object. And then the last method is void display, which displays the matrix element. Okay, and finally we have to create the object of the class and call all the member methods to enable the task of shifting the array element. Okay, and how we have to perform the shifting, children, it is also told in the beginning of the program that design a class shift to shuffle the matrix. That is, the first row becomes the last, the second row becomes the first, and so on. What is mean, children, कि हमें सारी रो को एक एक पोजीशन ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो जो लास्ट रो है वो सेकंड लास्ट हो जाएगी। यानी सपोज 4 रो है तो फोर्थ वाली थर्ड, थर्ड वाली सेकंड, सेकंड वाली फर्स्ट के प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड द फर्स्ट रो विल बिकम द लास्ट रो in the new matrix. Okay, children, so this job we have to perform in this program कि हमें साइक्लिक ऑर्डर में मैट्रिक्स को शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आइए रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है बेटा, सो it is the first part of the program, so you know that we have to create the class shift having 3 data members. No problem in this, integer mat and m and n. Okay, so all these 3 data members are declared at the beginning. Then the next is the constructor of the class shift, which takes 2 data member mm and nn. Okay, and the values which you pass, they are stored in into m and n, and the new matrix is created. Okay, then the next method is void input. You know very well about this. You will run the loop of r and c for row and column, and you will take the input of all the elements of the matrix. Okay, so the first part is very easy, there is no problem in this. After that we move to the second part of the problem. Okay? In the second part, children, see that the first method is given in the sheet, that is void cyclic shift p. Okay, if you know that it is the main method, okay, which will perform our job. So how it is going to work, we will see it later, and move to the next method that is given as void display, which again prints the matrix. There is no problem in this, and now we simply move to the main part of the program and check that how the program is going to work. Okay class, so now look at the first line of the method. What is told, shift a equal to new shift 3 and 4. ठीक है, तो बेटा मैंने एक यहाँ पे एक a नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड हैविंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे सपोज मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक, आफ्टर दैट व्हाट इज टोल्ड, शिफ्ट बी इक्वल टू न्यू शिफ्ट 3/4। तो आपने क्या किया, एक और यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया 3/4 का। ठीक है, तो ये बेटा ऑब्जेक्ट ए है और ये ए का मैट है, और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है बी, और बी के पास भी अपना एक मैट नाम से मैट्रिक्स है। तो 2 मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बेटा क्रिएट कर लिए। ठीक, इसके बाद फिर देखिए आपने क्या बोला, ए डॉट इनपुट। ठीक है, क्या होगा आपको पता है ना, वही जो फर्स्ट वाला जो मेथड है इनपुट वाला, दैट विल रन इनसाइड द बॉडी ऑफ ए एंड ऑल द वैल्यूज विल बी एंटर्ड। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसे इनपुट कर दें।
ठीक है बेटा, आफ्टर इनपुटिंग ऑफ द वैल्यू इनसाइड ए, ओके, नेक्स्ट लाइन इज बी डॉट साइक्लिक ए। अब आपको पता है ना क्या करना है कि ए वाला ये जो मैट्रिक्स है इसकी सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करके एक बी नाम का जो मैट्रिक्स है, जो बी नाम का ऑब्जेक्ट है उसके पास जो मैट्रिक्स है उसमें हमें स्टोर कर देना है। पर होगा क्या कि ये जो फर्स्ट वाली रो है वो यहाँ पे लास्ट रो पे स्टोर हो जाएगी। यानी देखिए जो फर्स्ट रो की वैल्यू है 5, 10, 15, 20, वो कहाँ पे स्टोर हो जानी है, बी के मैट्रिक्स में लास्ट वाली रो में। ठीक है, ये जो सेकंड रो है 25, 30, 35, 40, ये यहाँ पे फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड वाली फर्स्ट, थर्ड वाली सेकंड और फर्स्ट वाली लास्ट। ठीक है, तो और बेटा इसके बहुत सारे लॉजिक हैं। ठीक है, आप लोग अपने अपने लॉजिक आप लोगों ने अप्लाई भी किए होंगे, आप और भी बहुत तरह के लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे हैं, मैंने देखा है, दे मेक यूज ऑफ ए सिंगल डायमेंशन एरे। ओके, सो ऑल दिस थिंग कैन बी डन। ओके, ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ टू डू ऑल दिस थिंग। ओके, सो नाउ वी सी। तो मैंने भी यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लगाया है, तो इसको देखते कैसे किया है मैंने। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो मेथड कॉल हुआ वो कैसे, बी डॉट साइक्लिक है। यानी बेटा मैंने क्या किया, मैंने बी को बना लिया अपना करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये जो मेथड है साइक्लिक वाला वो हमने कहाँ से कॉल किया, बी की बॉडी में। यानी ये पूरा मेथड मेरा बी की बॉडी में चल रहा है। बी का जो मैट्रिक्स है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, ध्यान रखिए, वैल्यू ए वाले में है और ए को मैंने इसके अंदर पास कर दिया बी में। और ये जो ए जब यहाँ पे पास किया गया है तो आपको पता है कि ये यहाँ पे पी के नाम से आया है। यानी ये जो ए यहाँ पे आया है वो किस नाम से यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा, पी के नाम से। आप चाहो तो यहाँ पे पी का नाम दे सकते हो या फिर कोई और नाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैंने यहाँ पे पी क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो प्रॉब्लम में दिया है वहाँ पे जो फंक्शन का हेडर जो डिफाइन है उसमें शिफ्ट पी ही लिखा हुआ है। ठीक है, तभी मैंने कोई यहाँ पे चेंज नहीं किया। ऑब्जेक्ट के नाम आप चाहो तो ए और बी की जगह पी एंड क्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पी पास करोगे और पी ही के नाम से यहाँ पे एक्सेप्ट भी होगा। ठीक है, तो खैर चलिए वो चीज़ें अब आपको समझ में आती हैं। तो अब आइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाकी काम कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिएगा अब। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे फिर से दो काउंटर लिए हैं आर एंड सी, और पहला लूप मैंने चलाया आर का 0 से लेके लेस देन m-1 तक। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा m की वैल्यू करंट ऑब्जेक्ट में, करंट ऑब्जेक्ट b है और इसके m और n की वैल्यू आपको याद है क्या पास की थी आपने, 3 एंड 4। तो यानी कि जो आर का लूप है वो चलेगा 0 से लेके लेस देन 3-1, 3-1 यानी कि 2 से कम तक, यानी कि 0 से लेके 1 तक केवल 2 बार चलेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू बेटा पहली बार 0 होगी, अंदर आ जाइए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर सी और यहाँ पे लिख लेता हूँ r+1 एंड सी। ठीक है, तो फिर सी का लूप चलेगा आपका 0 से लेके लेस देन n तक, n की वैल्यू बेटा 4 है, यानी ये लूप चलेगा आपका 0 से लेके 3 तक। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू 0 है, सी आपका 0 से 3 तक चलेगा। तो फिर मैट आर सी की वैल्यू क्या होंगी, तो आर सी की वैल्यू आप जानते हो 0, 0, 0, 1, 0, 2 एंड 0, 3। ठीक है, सी का लूप 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा एंड द वैल्यू विल रेंज फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, फिर इसमें देखिए क्या करना है आपको, जीरो मैट आर सी में आपको पी डॉट मैट r+1c। अब देखिए यहाँ पे खाली r की वैल्यू जो 0 थी हम उसको एक आगे बढ़ाएंगे, यानी कि r+1, अगर r बेटा आपका 0 है तो r+1 कितना होगा, 1, 1, 1, 1, और c की वैल्यू क्या रहेगी, हर बार 0 ही रहेगी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कहा मैट पहली बार चल रहा है। ठीक है ना, तो पहली बार क्या होगा, आर सी की वैल्यू 0, 0 और r+1c की वैल्यू 1, 0। तो मैंने कहा मैट 0, 0 में p, यानी ये जो a आया है इसके मैट 1, 0 की वैल्यू कॉपी कर दीजिए, r+1 की वैल्यू 1 और 0, तो यानी यहाँ के 0, 0 में यहाँ के 1, 0 की वैल्यू कॉपी करिए, तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी अगली बार फिर अब आप ऊपर जाओगे C++। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, 0, 1 में 1, 0 की वैल्यू, तो ARR करंट के 0, ठीक है, 0, 1 में 1, 0 की वैल्यू यानी 30 आ जाएगा। फिर अगली बार जाएंगे 0, 2 में, ठीक है, 1, 2 की वैल्यू और 1, 3 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बेटा 0, 1, 2, 3 होंगी वैल्यूज। ठीक, तो 25, 30 और फिर यहाँ पे 35। ठीक है, और लास्ट में फिर क्या होगा, 0, 3 में 1, 3 की वैल्यू, तो क्या है 1, 3 पे 40। ठीक है, तो ऐसे ये देखिए बेटा जो पहली वाली रो है बी के करंट मैट्रिक्स में, उसमें यहाँ के रो नंबर 1 की वैल्यू, यानी यहाँ की जो सेकंड रो थी वो यहाँ पे क्या बन गई, आके रो नंबर 0 बन गई। ठीक, फिर क्या होगा बेटा, बाहर का लूप चलेगा,
आर प्लस प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, अब 1 हो जाएंगी। और जब आर की वैल्यू 1 है तो आर प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यानी क्या होने वाला है, 1 0 1 1 1 2 1 3। ये देखिए 1 0 1 1 1 2 और 1 3। यहाँ पे क्या होगा, 2 0 2 1 2 2 और 2 3 की वैल्यू। ठीक है, तो ये देखिए 2 0 2 1 2 2 और 2 3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका, 45 50 70 एंड 80। तो अब ये देखिए बेटा, सेकेंड राउंड चलने के बाद क्या होगा, ये जो पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट था ए, ये जो यहाँ पी के नाम से आया है, तो पी के मैट्रिक्स की जो थर्ड वाली रो थी वो यहाँ पे सेकेंड रो में आके कॉपी हो गई। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड रो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बन गई, यानी दोनों रो एक एक पोजीशन ऊपर मूव कर चुकी हैं। और फिर अब आपका बाहर का लूप चलेगा आर प्लस प्लस, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। लेकिन 2 बेटा आपका 2 से कम नहीं है, ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सीन क्या देख रहे हो कि जो करंट ऑब्जेक्ट है उसकी लास्ट रो ब्लैंक पड़ी है, और इस लास्ट रो पे वैल्यू किसकी आनी है, पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट पी की फर्स्ट रो की, क्योंकि ये जो फर्स्ट रो है ये यहाँ पे आके लास्ट रो में स्टोर होनी है। ठीक है ना, तो ये काम कैसे करेंगे, बाहर आइए तो ये देखिए ये एक लूप और लिखा हुआ है। ठीक है ना बेटा, मैंने एक लूप लिख दिया जीरो का, जीरो से लेके लेस देन एन, यानी लूप चलेगा जीरो से लेके 3 तक। ठीक है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ अब जरा देखिएगा, मैट m माइनस 1c, m की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है, तो 3 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 2। तो यानी 2 0 2 1 2 2 और 2 3, समझ गए ना यहाँ पे, तो ये हो गया 2 0 2 1 2 2 2 3। ये जो चार सेल हैं यहाँ पे वैल्यू लेके आनी है, कहाँ से, पी के मैट, पी वाला मैट्रिक्स यानी ये ऊपर वाला, यहाँ से जीरो सी से। तो सी की वैल्यू आप जानते हो 0 1 2 3, और जीरो तो दिया ही हुआ है कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 0 2 0 3, यानी कि ये वाली जो चार वैल्यू हैं आपको, ये यहाँ पे 2 0 2 1 2 2 2 3 पे, यानी कि 5 10 15 एंड 20। ठीक है, तो ऐसे बेटा फिर आपका ये लूप भी ओवर हो जाएगा और जो फंक्शन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या देखते हो कि यहाँ वाला पूरा मैट्रिक्स के सारी वैल्यू बेटा एक एक रो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होके करंट ऑब्जेक्ट यानी कि बी वाले मैट्रिक्स में स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है, और फिर ये फंक्शन ओवर हो गया, कंट्रोल फिर से मेन में लौट आएगा। और अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या प्रिंट कर दिया, ओरिजिनल मैट्रिक्स, सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था, तो आपने क्या बोला, ए डॉट डिस्प्ले एंड इट विल प्रिंट the original matrix. After that finally I will say that shifted matrix, and you know that the shifted matrix is stored into the second matrix, that is b. So we will call the method b dot display, okay, and it will again print the all the elements of the b। ठीक, तो ऐसे बेटा आपका ये वाला प्रोग्राम भी ओवर हो जाएगा। और मैंने आपसे जैसे पहले ही बोला कि इस प्रोग्राम में आप अपने और भी लॉजिक लगा सकते हैं। वी आर हैविंग नंबर ऑफ लॉजिक, हम लोगों ने क्लास 11th में इनको अटेम्प्ट भी किया था, तो आप उनको अपने अपने तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू बेटा। अब अगली बार जब मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे के और प्रोग्राम चेक करते हैं। ठीक, थैंक यू।